السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ماں چالاک اور بیٹی سیدھی، ماں نے جو بویا بیٹی کے وہ آگے آ گیا۔ آئیے مل کر یہ سچ بیانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو دبائیے۔ دوسروں کے کام کو اپنے نام سے پیش کرنا اگر ہنر اور فن کہلاتا ہے تو عارفہ بیگم بہت بڑی فنکار کہلانے کی حقدار ٹھہرتی تھیں۔ یہ ہنر سکھانے سے نہیں آتا بلکہ یہ پیدائشی طور پر قدرت کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ عارفہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ بچپن میں جب نانا ان سے ملنے گھر آتے تو چپکے سے نانا کو اپنے سے 3 برس بڑی ملیحہ کی کاپی یہ کہہ کر دکھاتی کہ دیکھیے نانا جان، میری ہینڈ رائٹنگ کتنی اچھی ہے۔ نانا واقعی اتنی سی بچی کی ایسی بہترین لکھائی دیکھ کر حیران ہوتے، پھر خوش ہو کر اسے 20 روپے دے دیتے۔ ابا دفتر جانے سے پہلے ناشتہ کر رہے ہوتے تو عارفہ ان کے پالش کیے ہوئے بوٹ ان کے قریب لا کر رکھتی۔ دیکھیے ابا، آپ کے جوتے کتنے اچھے چمکائے ہیں۔ وہ ابا کی توجہ چمکتے جوتوں کی طرف دلاتی، حالانکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا دیکھیں ابا، بڑی آپا نے آپ کے جوتے کتنے اچھے پالش کیے ہیں، لیکن وہ معصومیت سے آپا کا نام لینا بھول جاتی۔ فکرے کی بناوٹ کے اعتبار سے کارنامہ اسی کا معلوم ہوتا تھا۔ ابا کبھی تو خوش ہو کر شاباش دیتے اور کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے کچھ پیسے تھما دیتے۔ ایک دن ابا کا موڈ خراب تھا، شاید رات کو امی ابا کی جھڑپ ہو گئی تھی۔ عارفہ نے اس دن باپ کے پاؤں کے قریب جوتے رکھتے ہوئے ان کی چمک کی طرف توجہ دلائی تو ابا امی پر دھاڑے، اتنی سی بچی سے جوتے پالش کرواتی ہو، کیسی ماں ہو آخر۔ ابا کی دھاڑ سن کر اماں بوکھلائے ہوئے انداز میں کچن سے نکلی، ہائے ہائے کر کے معاملہ دریافت کرنا چاہا پر الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ عارفہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ اس روز کے بعد ابا کے پاس جوتے لا کر رکھنا تو چھوڑ دیے، مگر دوسروں کے کاموں سے اپنے نمبر بنانے کی عادت برقرار رہی۔ گھر والے اب اس کی عادت سے کچھ واقف ہو چکے تھے، لیکن وہ سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی۔ اس کی معصومیت بھری چالاکیوں پر ہنستے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ بچپن کی اس عادت نے لڑکپن میں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد یہ عادت اور زیادہ پکی ہو گئی۔ اب فرق یہ تھا کہ پیار کرنے والی بڑی بہنیں شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھر بار کی ہو گئی تھی اور اب گھر پر بھابھیوں کا راج تھا۔ بھابھیاں اس کی عادت سے سخت چڑ چکی تھیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ وہ ان کے بنائے گئے کھانے اپنے نام سے آگے بڑھاتی ہے اور تعریف وصول کرتی ہے۔ اب وہ چاہتی تھی جلد از جلد اس کا رشتہ کہیں طے ہو جائے اور ان کی اتنی باتیں بنانے والی نند ان کے گھر سے دفع ہو جائے۔ اس لیے بیچ والی بھابھی نے اپنے کزن سے عارفہ کی بات چلائی۔ عارفہ رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی تو بھاوجوں نے سکون کا سانس لیا۔ سسرال میں عارفہ کا واسطہ مدحت سے پڑا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا مدحت کا واسطہ عارفہ سے پڑا۔ مدحت جو عارفہ کے ساتھ ہی رخصت ہو کر یہاں آئی تھی، رشتے میں عارفہ کی جٹھانی تھی، مگر عمر میں اس سے 1.5-2 برس چھوٹی ہی ہوگی۔ سیدھی سادی گھریلو لڑکی جو کام کاج میں تو ماہر تھی لیکن باتیں بنانے کے فن سے قطعی ناآشنا تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اپنی باتوں سے لوگوں کا دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور عارفہ باتوں کے ذریعے گھر والوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی۔ شائستہ باجی، آپ کی اسکن بہت چمک رہی ہے، فیشل کروایا ہے نا؟ بڑی نند کے چہرے کی چمک صرف اسی کو نظر آتی اور یہ تعریف سن کر شائستہ باجی کا چہرہ واقعی خوشی کے مارے چمکنے لگتا۔ کیسا فیشل چندا، بچے جان چھوڑیں تبھی تو خود پر توجہ دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے چھوٹی بھابھی کے انداز پر خوش ہو جاتی تھی۔ جواب میں عارفہ ان کی خوبصورتی کی شان میں 2 قصیدے اور پڑھ دیتی۔ چھوٹی نند کی اسمارٹنیس پر وہ فدا تھی۔ ساس کے روکھے بالوں کی جانب توجہ کر کے ان کے سر پر تیل لگا کر ان کا دل جیتتی رہتی تھی، جبکہ مدحت بیچاری، وہ تو کچن کے کام میں ہی مصروف رہتی۔ وہ ساس کی اس طرح سے کوئی خدمت سر انجام کیسے دے سکتی تھی؟ گھر کے مرد کام سے لوٹتے تو سب سے پہلے چائے کا عارفہ ہی پوچھتی تھی، بھلے سے چائے کسی اور کو بنانی پڑتی۔ ٹرے میں کپ سجا کر صرف عارفہ ہی کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ گھر کا کوئی کام نہ کرتی تھی، مارے باندھے ایک آدھا کام کر لیتی تھی، لیکن کام اس انداز اور طریقے سے کرتی کہ سب کے نوٹس میں آ جائے، یعنی دکھاوے کی عادت تھی اس کو۔ مدحت کھانا بناتی اور آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیتی۔ کچن کی صفائی بھی اسی کے ذمے تھی۔
हाँ, रोटियां बनाने का काम आरफा ने अपने जिम्मे ले लिया था और फिर सबकी तारीफ वसूल करने के लिए गरम गरम रोटियां उनके सामने पेश करती। भाभी, रोटी पहले से बना लिया करे ना, ये क्या हम मजे से बैठकर खाना खाएं और आप किचन और कमरे के चक्कर ही काटती रहें। सबसे छोटा देवर अपनी हंसमुख भाभी से मुखातिब होता। अरे नहीं फुरकान, रोटियां तो मुझे गरम गरम बनाने में मज़ा आता है। घर वाले जब शौक से खाना खाते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। आपको हमारा कितना ख्याल रहता है और ख़ुद आखिर में बैठकर ठंडी रोटी खाएंगी आप। अच्छा लगता है ये। समरीन भाभी को प्यार से देखती। सारी दोपहर किचन में खबा देने वाली मिधत खामोश तमाशाई की हैसियत से दस्तरखान पर खामोशी से बैठी रहती और आरफा की दाद उसकी वाहवाह होते देखती रहती। बहुत बरस आरफा ने इस तरह घर पर राज किया था। फिर मिधत के मियाँ उसकी आदत पर हल्का फुल्का तंज करना शुरू कर चुके थे। मिधत जितनी मर्जी सीधी सही आरफा की चालाकियों से बखूबी आगाह हो चुकी थी। वो अपने दुखड़े मियाँ के आगे रोती और उनके मियाँ अब बीवी की हिमायत में मैदान में निकल आए थे। उसने माँ से मुतालबा किया कि काम दोनों बहुओं में बराबर बांटे जाएं, वरना वो बीवी को लेकर अलग हो जाएंगे। आरफा का कुछ नहीं बिगड़ा। ससुराल वाले मिधत और अपने उस बेटे के खिलाफ हो गए और आरफा की खुशकिस्मती कि उसके शौहर तजम्मुल की तरक्की हो गई और साथ ही दूसरे शहर ट्रांसफ़र भी हो गया। वो बीवी बच्चों को लेकर साथ चला गया। यानी वो ऐसी बहू जिसके खिलाफ अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा था। आरफा अब 2 बेटियों और 1 बेटे की माँ बन चुकी थी। अब वो उस राजधानी की बिला शिरकत करे मालिक थी, यानी कोई उसमें शरीक नहीं था। वो हुक्मरानी कर रही थी। अब बातें बनाकर नंबर बनाने का ज़माना गुजर गया था। अपने घर का इंतज़ाम उसे खुद संभालना था। तजम्मुल की तनख्वाह बहुत अच्छी थी। कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त हो गया था। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। बच्चियाँ बड़ी हुई तो उन्होंने माँ को घरेलू जिम्मेदारियों से बिल्कुल आज़ाद कर दिया। मनाहिल और कशफ दोनों बेटियां कामकाज के मामले में खासी सुघड़ और फुर्तीली थी और अब घर का इंतज़ाम बच्चियों के हाथ में ही था। हर माँ की तरह आरफा की भी ये ख्वाहिश थी कि बच्चियों को उनके घर बार का कर दे। मनाहिल को छोटी आपा ने अपने बेटे ज़िशान के लिए मांग लिया। असल मसला कशफ के रिश्ते का था। कशफ की रंगत दबती हुई थी, यानी वो सांवली थी। उसका रंग कम था, कद भी छोटा था। खानदान में बहुत से लड़के उसके जोड़ के थे, लेकिन किसी ने उससे शादी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। लड़कों के रिश्ते तय हो गए और आरफा की तवक्कुआत और ख्वाहिशात पर पानी फिरता रहा। रिश्ते करवाने वाली खाला की खिदमात भी ली गई, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। कशफ बुनियादी तौर पर साबिर शाकिर लड़की थी। आरफा के बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार और सलीकामंद, और वो अपनी माँ पर बिल्कुल नहीं गई थी। यानी झूठ और दिखावे की उसको आदत नहीं थी। आरफा का बस नहीं चलता था कि अपनी उस कमगो और फर्माबरदार बेटी का पलक झपकते में शानदार घर में रिश्ता कर डाले। वक्त गुजरता जा रहा था और कशफ के मुतालिक सोच सोच कर आरफा की नींदें उड़ती जा रही थी। तजम्मुल बीवी को समझाता, जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो खुद ब खुद रास्ते बन जाएंगे। और फिर आखिरकार आरफा की दुआएं रंग लाईं और कशफ का रिश्ता भी तय पा गया। लड़का बहुत अच्छा था। कामरान नाम था उसका। तजम्मुल के किसी दोस्त का भांजा था। फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ था। उसकी ज़ाती एकेडमी थी। आमदनी ठीक ठाक थी, लेकिन उसका कुंबा, उसका ख़ानदान खासा बड़ा था। आरफा इतने बड़े ससुराल में बेटी ब्याहते हुए बहुत परेशान थी, लेकिन बेटी की बढ़ती हुई उम्र की वजह से उसके पास ये रिश्ता कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन कशफ की शादी के बाद उसके खदशात और अंदेशों से धड़कते दिल को करार आ गया। उसके ससुराल वाले अच्छे लोग थे। सास नंदे बहुत ज़्यादा तेज तर्रार नहीं थी। कामरान भी शरीफ और अच्छा लड़का था। कशफ उसके साथ खुश थी और बेटी को खुश देखकर आरफा हद दर्जे मुतमईन हो गई। लेकिन शादी के बाद कशफ मैके का चक्कर बहुत कम लगाती थी। शहर में होते हुए भी मुद्दतों अपनी शक्ल माँ बाप को ना दिखाती। आरफा जब भी फ़ोन करती तो वो किसी काम में मसरूफ़ होती और उजलत भरे अंदाज में फ़ोन बंद कर देती। इस बार कशफ पूरे 1.5 माह बाद आई थी। आरफा को वो पहले की निस्बत कुछ कमज़ोर लगी थी। ससुराल में तो सब ठीक है ना तेरे साथ? कामरान ख्याल रखता भी है या नहीं? मैं के आने से रोकता तो नहीं है? और फ़ोन करती हूँ तो बंद क्यों कर देती हो? आखिर ऐसा काम क्या है? इतने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें ही काम है उस घर में? आरफा ने उस पर कई सवाल कर डाले तो वो हंसते हुए कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। तो फिर
ये शक्ल इतनी सी क्यों निकल आई है? आरफा बहुत परेशान थी अपनी बेटी को देखकर। काम बहुत ज्यादा है अम्मी, और कोई बात नहीं, और अच्छा है ना मैं शादी के बाद भी मोटी नहीं हुई, अब तक वैसे ही स्मार्ट हूँ। मनाहिल आपी को देखें, उन्होंने कितना वजन बढ़ा लिया है और अब डाइटिंग करके वजन कम करने की कोशिश में लगी हैं। तो काम का बोझ सिर्फ तुम पर ही है क्या? वो तुम्हारी जेठानी वो कोई काम नहीं करती है? दोनों मिलकर बांट क्यों नहीं लेते हो काम? क्या मेरी बेटी के ऊपर सारा काम डाल दिया है? आरफा बेगम का ध्यान बेटी के पहले मसले पर ही अटक गया था, बाकी की बात तो जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं। अफशा भाभी, उनकी तो आप बात ना ही करें अम्मा। कशफ हंस पड़ी। क्यों? देखने में तो बहुत भली औरत लगती है, हंसमुख भी है, तेरे साथ ताउन नहीं करती, तेरी मदद नहीं करती है, इखलाक की तो बहुत अच्छी है। आरफा ने हैरत से कहा, पता नहीं अम्मी, मैं आज तक उनको नहीं समझ सकी। कशफ साफ गोई से बोली। इससे पहले कि आरफा मजीद कुछ पूछती, तजम्मुल और कामरान मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ गए। चले भाई बेगम, खाना लगवाएं, बहुत भूख लगी है। बस अभी परवीन से कहकर खाना लगवाती हूँ। आरफा ने मुलाजमा को आवाज़ दी। उस दिन बात आई गई हो गई, लेकिन बेटी की अधूरी बात ने आरफा बेगम को बेचैन कर दिया था। बेटी की बात का मतलब उन्हें चंद दिन बाद समझ में आया। वो दिन जब वो लोग कशफ के ससुराल पहुंचे थे। कशफ की सबसे छोटी नंद ने मैट्रिक के इम्तिहान में बोर्ड में तीसरी पोजीशन ली थी। इस खुशी को मनाने के लिए कामरान के घर वालों ने करीबी रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया था। आरफा बेगम तजम्मुल और छोटे बेटे उसामा के साथ उसके ससुराल पहुंच गए। कशफ बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी नंद के लिए शानदार सा गिफ्ट लेकर गए थे। अपनी बेटी को निगाहों ही निगाहों में सराह रही थी, बलाएं ले रही थी। कशफ माँ के पास आकर बैठ गई। जब उसकी जेठानी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी, जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहता उसके लिए फौरन ठंडा ठार स्क्वाश लेकर आ जाती थी। हर जगह अफशा के नाम की पुकार पड़ रही थी। अफशा की मसरूफियत का यह आलम था कि उसने अभी तक नहा धोकर कपड़े भी नहीं बदले थे। कशफ की मुमानी सास ने इस बात पर उसे टोक दिया, ए बेटा, अब तुम भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो, बाकी काम कोई और कर लेगा। मुमानी के कहने पर आरफा बेचैन हो गई। अगरचे उन्होंने कशफ का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा शायद उसी की तरफ था। कशफ की छोटी नंद तो आज की चीफ गेस्ट थी। बड़ी ब्याही नंद की गोद में 1.25 महीने का बच्चा था। सास जोड़ों की मरीजा ले देकर कशफ ही बचती थी, जो तैयार होकर माँ के पहलू से जुड़ी बैठी थी। तेरी जेठानी फिरकी की तरह घूम रही है कशफ, कुछ तू भी उसका हाथ बटा ले, सब मेहमान क्या सोचेंगे? छोटी बहू घर के हर काम से लाताल्लुक है। आरफा ने बेटी के कान में सरगोशी की। अम्मी, सुबह से मैं ही कामों में जुटी हुई हूँ। सर मेरा जोर जोर दुख रहा है। पहले मुलाजमा के साथ मिलकर पूरे घर की तफसीली सफाई की, फिर दोपहर का खाना बनाया। अफशा भाभी के तो सुबह से दाढ़ में दर्द था। जब भी घर में ज़्यादा काम हो उनके कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, और जब सारे काम निमट जाए तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। मुझसे कहने लगी, तुम सुबह से लगी हुई हो, अब नहा धोकर तैयार हो जाओ, जो काम बचा है वो मैं देख लूँगी। काम बचा है क्या है अम्मी? लेकिन बस ये इसी तरह भागदौड़ करती रहेंगी। कभी किसी के पास रुककर उसका हाल अहवाल दरियाफ्त कर लिया, कभी किसी के कपड़ों की तारीफ कर दी, कभी किसी का रोता बिलखता बच्चा गोद में उठाकर थपकना शुरू कर दिया, कभी किसी बीमार की मिजाज पुरसी करते हुए उसे मुफ्त मशवरों से नवाजना शुरू कर दिया। यूं हर किसी के पास रुकते हुए बातें बघारेंगी और जरा सा काम घंटों पर मुहित हो जाएगा। दुनिया को ये लगेगा कि उनसे बढ़कर काम करने वाला कोई नहीं है। कशफ तो भरी बैठी थी, माँ के सामने दिल के फपोले फोड़ने बैठ गई। तौबा मेरे अल्लाह, कैसी चालाक औरत है, तू भी इससे ऐसी चालाकियाँ सीख ले। आरफा ने बेटी को समझाना चाहा। नहीं अम्मी, ये मेरे बस की बात नहीं है। जबान के बल पर दूसरों को अपना बनाने और हर किसी के सामने अपना सिक्का जमाने का जो हुनर अफशा भाभी के पास है, ये हुनर शायद उन्हें कुदरत की जानिब से मिला है। देखने सिखाने से कुछ नहीं आता। कशफ ठंडी सांस लेकर बोली। आरफा ने कुछ कहने को लब खोलना चाहे, मगर फिर खामोश हो गई। शायद बेटी ठीक कहती थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई, क्योंकि जो उसने बोया था वही आज उसकी बेटी काट रही थी। जो चालाकियाँ उसने की थी, बचपन से करती आई थी, आज उसकी बेटी को वही चालाकियाँ देखने को मिल रही थी। और उसकी बेटी खामोश थी, उसको सहना पड़ रहा था, और वो माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी।